صاحب صحیح سے دو داٹ یار جاگ دے آج مشکل آج کی سو نائٹ چکی یا مطلب اسٹیٹ ہلو وعلیکم میر خیریت تھے نہ سر حکم ہاں پیون بیک گراؤنڈ تو پیون جن تو بلیک کر لکھو ٹھیک کوئی کہہ بی این پی عوامی نارا کی صحافتی خدمات تھا مختار دا کھلا نتیر شاہ عسکری ننیان آجی کاغذ صاحب ناراض کری مختار بھائی اسو خراب کنی گوری داس اور ایک کی دوننگا موالی تیرنو نار خالق فری والا کھیری منشیاتا خلاف ہوئی پیسہ دا خلص کہنو دینا ریلینا داخل سے منشیات نا خلاف کیسے میرا نام غلام حسین بلوچ ہے میں وش نیوز میں کام کرتا ہوں آئی این پی میں ہم نے ہمارے جو منسٹر ہے میر ضیاء صاحب ہے ہمارے ایم این اے سید محمود شاہ صاحب اور وہ بی بی روبینہ عرفان صاحب ہے ہم نے بارہ ان لوگوں سے ریکویسٹ کیا ہے کہ ان کے لیے فنڈز آپ لوگ جنریٹ کریں تاکہ اس کو ہم لوگ فعال بنائیں لیکن اس حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت نہیں ہوا ہے ہم لوگوں کا چلتا پھرتا صحافت ہے پھر ہم لوگ ایز اے سوشل ورک اس کام کو کر رہے ہیں ادھر نیٹ کا بھی مسئلہ ہے کبھی ہم لوگ کسی ہوٹل میں بیٹھ جاتے ہیں کسی تڑے پر بیٹھ جاتے ہیں تو اس حوالے سے سخت مشکلات کا سامنا ہے صحافیوں کو دیکھیے ہمیں بہت سے تکالیف کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے مقامی لوگ بھی اس حوالے سے بہت پریشان ہیں پرسنلی وہ کانٹیکٹ کر لیتے ہیں وہ آ کر کسی جگہ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرتے ہیں یا کوئی ریلی ایک دن پہلے ہمیں بتاتے ہیں تو خود ہم لوگ جا کر اس کو کوریج کرتے ہیں اگر پریس کلب ہوتا تو وہ لوگوں کو مشکلات بھی نہیں ہوتے اور صحافیوں کو بھی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا بڑی بدقسمتی کی بات ہے کلات جیسے ایک تاریخی مقام رکھتا ہے بلوچستان کا دارالخلافہ رہا ہے لیکن ایسے تاریخی شہر میں کئی سالوں سے ہمیں پریس کلب موجود نہیں ہے پچھلے اتوار میں ہمارے موجودہ میں نے روبینہ عرفان صاحب ہے اس نے ہمارے لیے ایک پریس کلب کا بنایا تھا لیکن وہ بھی گزشتہ 10 سالوں سے غیر فعال ہے اس میں فرنیچر کا مسئلہ ہے دروازے کھڑکیاں اور دوسرے فنڈ کی لیکن بار بار ہم لوگوں نے جو ہمارے ایم پی ایز ہے ایم این ایز ہے اس سے اس بارے میں اللہ وال کیا ہے کہ بھائی ان کے لیے فنڈز آپ لوگ رکھیں لیکن ان کی طرف سے کوئی رسپانس ہمیں نہیں مل رہا ہے سر جی بہت سی مشکلات ہیں ہمارے لیے کلات میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے یہ ہمارا ہے 2016 میں اس کا افتتاح ہو چکا ہے لیکن آج تک بند پڑا ہوا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ہماری جو آواز ہے وہ میڈیا ہے لیکن اس وقت پورے پاکستان میں پوری میرے خیال پوری دنیا میں اس وقت کلات میں جو میڈیا ہے وہ اس وجہ سے اپنی آواز اوپر نہیں لے جا سکتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ یہ سہولیات بھی نہیں ہیں ان کے پاس یہ کیا ہے
प्रेस क्लब है उसकी प्रेस क्लब भी बंद है। इस वजह से हमें बहुत मुश्किलात होती है। ना सिर्फ कलात बल्कि बदकिस्मती से बलूचिस्तान के जो मुख्तलिफ़ अज़ला हैं अंदरून बलूचिस्तान, उन सब में कम व बेश यही कुछ मसाइल हैं। कहीं पर एक से ज़ायद प्रेस क्लब हैं, कहीं पर एक है, कहीं पर ये फ़ाल नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ख़ास तौर पे ये है कि जो वहाँ पर लोग सहाफ़त कर रहे हैं वो उनके आपस में चपकलिश या ग्रुप बंदी की वजह से अक्सर जगहों पे ये मसाइल दरपेश आते हैं। तो कलात में भी सुनने में यही आ रहा है कि यही कुछ सूरत-ए-हाल है और इसी वजह से प्रेस क्लब फ़ाल नहीं है। ये बहुत बदकिस्मती की बात है। जहाँ तक आपने पूछा कि इसको काउंटर कैसे किया जाए या इस मसले को हल कैसे किया जाए, पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आइन के तहत उसे ही सहाफ़ी माना जाता है जो सहाफ़त के अलावा उसका कोई दूसरा ज़रिया मुआश ना हो, उसका कोई दूसरा कारोबार ना हो, उसकी कोई सरकारी या निजी उसमें मुलाजमत ना हो, यानी वो मुलाजिम ना हो, सिर्फ सहाफ़त कर रहा हो। बदकिस्मती से जो हमारे अंदरूनी बलूचिस्तान जो अज़ला है, ना सिर्फ अंदरून बलूचिस्तान बल्कि पाकिस्तान में भी जो अंदरून के अज़ला हैं उनमें कुछ ऐसी सूरत-ए-हाल है कि बेशतर सरकारी मुलाजमीन जो है वो सहाफ़त कर रहे हैं। बलूचिस्तान में अक्सर हम यही देख रहे हैं, तकरीबन हर ज़िले में यही कुछ सूरत-ए-हाल है कि बेशतर जो लोग हैं जो सहाफ़त कर रहे हैं, अखबारात से मुंसलिक हैं या जो टीवी चैनल से भी मुंसलिक हैं, वो बदकिस्मती से सिर्फ सहाफ़त नहीं कर रहे। उनमें अक्सरियत की जो तादाद है वो मुलाजमत पेशा है, सरकारी मुलाजमीन है। इस हवाले से अदालती अहकामात भी मौजूद हैं कि सरकारी मुलाजिम जो है वो सहाफ़त नहीं कर सकता, लेकिन बदकिस्मती से ये प्रैक्टिस जो है वो बलूचिस्तान में जारी है। इस वजह से जो यूनियंस हैं अपने आइन के तहत दायरा कार में रहते हुए इस पर कुछ ख़ास कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन बिल्कुल इस बात में कोई शक नहीं कि इस मसले को हल करना चाहिए। जो सहाफ़त है वो दरअसल आम आवाम के मसाइल को रियासत तक या पूरी दुनिया तक पहुँचाता है। इस वजह से इन मसाइल की वजह से अंदरूनी बलूचिस्तान के जो लोग हैं उनकी आवाज़ रियासत तक या दुनिया तक उस तरह नहीं पहुंचती जिस तरह पहुंचनी चाहिए। गो कि आजकल सोशल मीडिया का भी दौर है, इसमें सिटीज़न जर्नलिज़म जो है वो काफ़ी फ़ाल हद तक मतलब पूरी दुनिया में फ़ाल है और बलूचिस्तान में भी ये फ़ाल हो सकता है और इसमें काफ़ी कुछ लड़के काम भी कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से जो ये सरकारी मुलाजमत का और सहाफ़त का एक जो वो हुआ है बलूचिस्तान में, ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है और ये बहुत बड़ा मसला है। यूनियन इस हवाले से ये है कि हम कोशिश करें, जो हमारी यूनियंस हैं, जो हमारे सीनियर साफ़ी हैं, वो इनकरेज करें अंदरूनी सूबा जो है उन लोगों को जो सिर्फ सहाफ़त करना चाहते हैं, जो सिर्फ सहाफ़त कर रहे हैं। हम इनकरेज करें ऐसे लोगों को जो प्योरली सहाफ़त पर यकीन रखते हैं और जो पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के आइन के दायरे में आते हैं। इनकरेज करने से मुराद ये है कि जब मुलाजमतें हों मीडिया में तो ऐसे ही लोगों को तरजीह दी जाए। जो तनख्वाह नहीं लेते, बदकिस्मती से जिनकी मुलाजमतें हैं, सरकारी मुलाजमतें हैं, वो मुफ्त में अपनी सर्विसेज देते हैं। मैं मीडिया ऑर्गेनाइजेशन से, अखबारात से और टीवी चैनल से गुजारिश करूँगा कि वो ऐसे लोगों को हायर ना करें, वो ऐसे लोगों की हौसला शिकनी करें जो मुफ्त में काम करते हैं। जो मुफ्त में काम करता है वो ज़रूर यकीनन उसकी जो है ज़ाती मुफादात हैं। तो इसमें ना सिर्फ यूनियंस का बल्कि जो मीडिया हाउसेस हैं, जो अखबारात हैं, उनका भी बहुत बड़ा रोल है कि हम हकीकी सहाफ़त जो है, जो हकीकी सहाफ़ी हैं, जो आइन के तहत जिनको हम कहते हैं हकीकी सहाफ़ी, उनको इनकरेज करने के लिए अंदरूनी सूबा मुलाजमतें उन्हीं सहाफ़ियों को दी जाएँ जो सरकारी मुलाजमत नहीं करते। यही एक वाहिद हल है इन मसाइल का। देखें, कोयटा में इस तरह के मसले नहीं हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि कोयटा में जितने भी मुलाजमीन हैं वो बाकायदा पेड हैं, वो इदारों में बाकायदा तौर पर मुलाजमत कर रहे हैं। उन्हें ज़रूरत पेश नहीं आती कि वो सरकारी मुलाजमत भी करें। इस तरह के जब भी कोई केसेस कोयटा में रिपोर्ट हुए हैं तो बासानी उनको प्रेस क्लब की मेंबरशिप से या बलूचिस्तान यूनियन जर्नलिस्ट की मेंबरशिप से हाथ धोने पड़े हैं, उनको निकाला भी गया है। इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो ऐसे ही कुछ सूरत-ए-हाल अगर अंदरूनी सूबा किया जाए, इनकरेज उन लोगों को किया जाए, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ, इन लोगों को इनकरेज किया जाए जो सिर्फ सहाफ़त करना चाहते हैं या जो सिर्फ सहाफ़त कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मौक़े दिए जाए, ऐसे लोगों को मीडिया हाउसेस में मुलाजमतें दी जाएँ, तो यकीनन
اس طرح کے مسئلے نہیں ہوں گے، اور جو لوگ ہیں ان کے مسائل ان کے اپنے ہی شہر میں جو ان کی آواز ہے وہ ریاست تک پہنچائی جا سکے گی. جی.